کہ آپ کا کہنا ہے کہ جو جنا اسپتال جانے والی سڑک ہے وہاں سے بھی پتھراؤ کیا جا رہا ہے. روڈ لائٹ. شعیب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی شہزاد. جی شعیب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ایمبولینسز ہیں جو جنا اسپتال جانے کی کوشش کر رہی ہیں کیا ان کے لیے کوئی متبادل راستہ بنایا گیا ہے؟ کیونکہ جو سڑکیں آپ گنوا رہے ہیں وہ تو ساری جنا ہاسپٹل کو جاتی ہے. اگر ساری سڑکیں بند ہیں تو وہاں پر ایمبولینسز پھنس تو نہیں گئی ہیں؟ شہزاد اس وقت ہمیں یہاں پر عام تو بالکل کوئی نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی بھی یہاں پر کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی عام ٹریفک آ رہی ہو یا کوئی ایمبولینس. جناب ہاسپٹل کو جانے کے لیے نہر کا ہے اور وہ دوسری سائڈ سے ہے. تو یقیناً لوگ جو ہے جتنے بھی وہ اس وقت نہر کا راستہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ روڈ جو ہے یہ آلریڈی اگر ہم برکت مارکیٹ سے بات کریں تو اس کو تو کل سے پہلے ہی بند کیا گیا ہے. پرسوں سے اس کو رات کو 4 بجے بند کر دیا گیا تھا. اس وجہ سے اس وقت کی جو سچویشن ہے پولیس کی بھاری نفری وہاں پر ہے تو پولیس بالکل بھی آگے جو ہے وہ وہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا اس روڈ کے اوپر. اور جناب طرف اگر کوئی جانا چاہے تو اس روڈ کے اوپر وہ نہیں جا سکتا ہے. اگر اس کو جانا ہے تو اس کو کینال کا سہارا لینا پڑے گا اور جناب جو ہاسپٹل کا انڈر پاس ہے اس کے اوپر سے ہو کر جناب ہاسپٹل اس کو جانا پڑے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سہیب ملک. اپنا خیال رکھیے گا، ٹیم کا خیال رکھیے گا. آپ سے اپڈیٹ ہم لیتے رہیں گے. اس وقت کے مناظر اور اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن گول چکر جو کہ مین انٹری پوائنٹ ہے ٹورڈز ماڈل ٹاؤن اور یہاں سے بہت نزدیک ہے القادریہ اور منہاج القرآن سیکریٹریٹ اور وہاں تک پہنچنے کا سب سے آسان سب سے سیدھا راستہ بھی یہی ہے. یہاں پر پاکستان عوامی تحریک کے کارکن اور پنجاب پولیس کے درمیان ابھی تک میدان جنگ کی سی کیفیت ہے. محاذ آرائی ہے، ہنگامہ آرائی ہے. وقتاً فوقتاً عوامی تحریک کے کارکن اٹیک کرتے ہیں پنجاب پولیس پہ اور پنجاب پولیس جوابی اٹیک کرتی ہے. اس سچویشن سے تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر ہمارے کو اینکر علی ممتاز بھی موجود تھے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتائیں گے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جو میدان جنگ بن چکا ہے. یہ فیصل ٹاؤن چوک ہے کہ جہاں پر پولیس کی طرف سے کنٹینرز لگائے گئے تھے اور یہ کنٹینرز پرسوں رات کو لگائے گئے. نہ صرف اس مقام پر لگائے گئے بلکہ اور بھی بہت سے مکانات ہیں مال ٹاؤن کے اطراف میں کہ جہاں پر کنٹینرز لگا کے اس علاقے کو بند کر دیا گیا. اور بند کرنے کی وجہ یہی تھی کیونکہ یہ وہ تمام رستے ہیں جو منہاج القرآن سیکریٹریٹ یا ڈاکٹر طاہر القادری کی رہائش گاہ کو جاتے ہیں. بائیں جانب جنا ہاسپٹل ہے اس کے سامنے بھی کنٹینرز لگا دیے گئے تھے. کل رات کو وہ کنٹینرز ہٹا دیے گئے. ایک طرف کا کنٹینر ہٹایا گیا تاکہ ایمبولینس اور وہ لوگ جو ہسپتال جانا چاہتے ہیں وہ بآسانی ہسپتال پہنچ سکیں. لیکن وہ علاقہ بھی بند ہے. دوسری جانب گارڈن ٹاؤن کی طرف سے آتے ہوئے جتنے بھی رستے ہیں وہ بھی بند ہیں اور صورتحال کافی سنگین ہو چکی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ علاقہ جو ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے. یہاں پر بہت بڑی تعداد میں پولیس اہلکار موجود ہیں جو آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے ہیں اور مظاہرین پر ان کارکنان پہ جو پاکستان عوامی تحریک سے ہیں. اور یہ کرین جو آپ کو اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ابھی دکھائی دے یہ وہ کرین ہے جو کہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کی طرف سے لائی گئی تھی اور کنٹینرز کو ہٹانا مقصد تھا کہ تاکہ اس کرین کو استعمال کرتے ہوئے کنٹینرز کو یہاں سے ہٹایا جائے. پولیس کی بہت بڑی تعداد یہاں پر ڈپلائڈ ہے اور اس طرف پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان موجود ہیں جن کی طرف سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے. اب سے کچھ لمحے پہلے پولیس کی طرف سے یہاں سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور اگر آپ کو فاصلے پر لوگ دکھائی دے رہے ہوں تو جب شیلنگ ہوئی تھی اس وقت لوگ پیچھے کی طرف چلے گئے تھے. اب آہستہ آہستہ لوگ دوبارہ آگے کی طرف آ رہے ہیں اور پولیس کی طرف سے جو ہے وہ ایک اور آنسو گیس کا شیل جو ہے وہ فائر کیا گیا اور یہ بالکل اسی مقام پر جا کر گرایا گیا جہاں پر یہ لوگ موجود ہیں. اور اس طرف سے بھی کریکرز پھینکے جا رہے ہیں اور کریکرز کا استعمال دوسری طرف سے کیا جا رہا ہے. اور جب یہ آنسو گیس کی شیلنگ کی جاتی ہے تو شیلنگ کرتے ہی پولیس کی طرف سے ریٹریٹ ہوتی ہے. پیچھے کی طرف پولیس چلی جاتی ہے کیونکہ آنسو گیس کا فائر کیا ہوا شیل جو ہے اس کا جو دھواں ہے وہ یہاں پر محسوس کیا جاتا ہے. اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں پولیس اہلکار جیسے کہ موجود ہیں. پانی کا انتظام کیا گیا ہے. رومال کپڑے کو گیلا کر کے آنکھوں پہ لگایا جا رہا ہے تاکہ جلن سے بچا جا سکے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی طرف سے جو حکمت عملی اور یہاں پر جو شیل فائر کیے جا رہے ہیں ان شیلز کے ساتھ ساتھ وہاں سے کریکرز پھینکے جا رہے ہیں اور یہ دوبارہ سے جو آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے ہیں ان کے فائر ہونے کے نتیجے میں آنکھوں میں جلن محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے. اور یہاں یہ تمام میڈیا اس جانب موجود ہے. یہ وہ کنٹینرز ہیں جو کہ یہاں پر پہلے بھی موجود تھے ابھی موجود ہیں اور دائیں جا رہے کیونکہ ہوا اس طرف کی ہے
तूफानी नाज़रीन सूरत हाल जो है वो बिगड़ती चली जा रही है और मुझे यूँ लग रहा है कि जिस तरह न सिर्फ पुलिस की तरफ से आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हैं बल्कि दूसरी तरफ से भी हो रहे हैं। ये एक राय है, लेकिन ऐन मुमकिन है क्योंकि हवा इस तरफ की है, तो जब पुलिस की तरफ से कोई आंसू गैस का शेल फायर किया जाता है मुजाहिरीन की तरफ, तो हवा की वजह से वही धुआं जो है वो इस तरफ वापस आ जाता है। ये फायर करने के फौरन बाद पुलिस की जो बहुत बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है, इनके पास लाठियां भी हैं, आंसू गैस के शेल भी है, असलहा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि असलहे से भी पुलिस एहलकार लेस हैं और बसें, बहुत बड़ी बसें जो है वो पुलिस की यहाँ पर लाई जा चुकी हैं जिसमें पुलिस एहलकार मौजूद है। जहाँ पर पुलिस एहलकारों की बहुत बड़ी तादाद है वहीं पर मुजाहिरीन की भी बहुत बड़ी तादाद है और क्रेन भी अभी भी अपनी जगह वहीं पर मौजूद है। कंटेनर्स को हटाया गया है, आंसू गैस की शदीद शेलिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो यहाँ के इस इलाके के रहने वाले इलाका मकीन है उन पर क्या गुजर रही होगी, उन पर क्या बीत रही होगी, वो किस तकलीफ किस परेशानी से गुजर रहे होंगे, किस तरीके से वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को गुजार रहे होंगे। यहाँ पर जिंदगी मफलूज हो चुकी है इस कार्रवाई के नतीजे में और बहुत से हलकों की तरफ से ये तनकीद की जा रही थी और तनकीद इंतजामिया भी की जा रही थी कि ये सब करने की जरूरत नहीं थी। बासानी यहाँ पर जो दी गई थी डॉक्टर तारुक कादरी साहब की तरफ से यौम शुहदा की, जो कि परसों है, उस कॉल के नतीजे में जिन लोगों ने भी यहाँ पर आना है उनको आने दिया जाए। उनको एक और पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो है वो शेल फायर किया गया है और शेल फायर करते ही पुलिस जो है वो दोबारा वापस अपनी पोजीशंस पर आ जाती है। हमारे को एंकर अपडेट कर रहे थे फैसल टाउन की सूरत हाल से, लेकिन इस वक्त हम आपको खुशाब की सूरत हाल से अपडेट करते हैं जहां पर अवामी तहरीक के कारकुनान ने थाना कायदाबाद को आग लगा दी और थाने के हाथे में खड़ी पुलिस मोबाइल को भी जला दिया गया था। ये एक्सक्लूसिव मनाजर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, समा की स्क्रीन पर। खुशाब में अवामी तहरीक के कारकुनान ने, पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान ने थाना कायदाबाद को आग लगा दी और उसके बाद जो एक गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी इस अहाते में इस पुलिस स्टेशन के, उसको भी जला दिया गया और वहां से पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुए। लेकिन सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है। हमने देखा, आपको लाहौर की सूरत हाल से भी आगाह किया, इस वक्त आपको खुशाब के मनाजिर से आगाह कर रहे हैं। पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान मुश्तइल हो गए हैं। जैसे जैसे 10 अगस्त का यौम शोहदा और मुमकिना यौम इनकलाब की कॉल नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों का गुस्सा, उनका इश्तियाल बढ़ता जा रहा है। एक्सक्लूसिव मुनासिर आप समा पर देख सकते हैं। थाना कायदाबाद है जिसको आग लगा दी है पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों ने। इसके अंदर एक पुलिस वैन, पुलिस मोबाइल खड़ी हुई थी, वो भी जला दी गई है और जो पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद थे वो अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो गए। जिस वक्त के आप मनासिर देख रहे हैं उस वक्त कारकुनान की अवामी तहरीक के बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, शहरियों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कायदाबाद का थाना है ये जिसे अवामी तहरीक के कारकुनों ने आग लगा दी है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव मनासिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाहौर तो हमें आज मैदान जंग बना हुआ नजर आया ही, लेकिन खुशाब में भी सूरत हाल कम तशवीशनाक नहीं है। वहाँ पर एक थाने को जो कि सरकारी इमलाक है इसको नुकसान पहुँचाया है, इसे जला दिया गया है। आपको अपडेट कर दें कि ताहिरुल कादरी के खिलाफ पहले ही मुल्क और रियासत के खिलाफ हथियार उठाने का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब खुशाब में थाना कायदाबाद को आग लगा दी अवामी तहरीक के लोगों ने। और ये मनाजिर आप सिर्फ समा पर देख सकते हैं। खुशाब में पुलिस स्टेशन को, थाना कायदाबाद को आग लगाई पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान ने और उसके बाद एक पुलिस मोबाइल थी उसको भी आग लगा दी गई और वहां पर जो अरकान थे, पुलिस के एहलकार थे, वो वहां से भागने में कामयाब हुए और उन्होंने अपनी जान बचाई। ऐसी ही सूरत हाल लाहौर में भी हम देख रहे हैं जहां पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान ने फैसल टाउन और मॉडल टाउन के रिहायशियों को अपने घरों में महसूर कर रख दिया है और वहां पर भी पुलिस से उनकी महाजाराई जारी है। पुलिस पर पथराव किया जा रहा है, पुलिस की जानब से जवाबी तौर पर शेलिंग भी की जा रही है और रबड़ की गोलियां भी फायर की जा रही हैं। लेकिन इस वक्त खुशाब की सूरत हाल से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप समा पर देख सकते हैं जहां पर थाना कायदाबाद में आग लगा दी गई पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान की जानब से। पुलिस से इनकी पहले झड़प हुई थी और इस झड़प के बाद उन्होंने यहां से पुलिस को भागने पर मजबूर कर दिया और उनकी मोबाइल को भी आग लगा दी। खुशाब के मनासिर हम आपको दिखा रहे हैं। थाना कायदाबाद जिसको अवामी तहरीक के कारकुनों ने आग लगा दी है, जहां पर एक पुलिस वैन, पुलिस मोबाइल खड़ी हुई थी, उसे भी जला दिया है और जो पुलिस एहलकार यहां पर मौजूद थे वो मजबूर हो गए कि जान बचाकर भाग जाएं।
लाहौर के मनाजिर अगर हम आपको बताएं, कोशिश करेंगे कि स्प्लिट विंडोज में, 2 विंडोज में हम आपको दोनों शहरों के मनाजिर दिखाएं, खुशाब के भी और लाहौर के भी एक्सक्लूसिव मनाजिर। फिलहाल आप खुशाब के देख रहे हैं। थाना है कायदाबाद का, जिसे अब से कुछ देर पहले अवामी तहरीक के लोगों ने जला डाला, नजर आतिश कर दिया, पुलिस वैन भी जला डाली, सरकारी इमलाक है। इस वक्त फौरन आपको लेकर चलेंगे लाहौर, जहां पर वजीर कानून राना मशहूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जत्थे के जत्थे बनाकर पुलिस वालों के घरों में घुस जाओ। खुद इसने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि 15 के 15 बदले 15। एहसास का तो फैसला अदालतें और करती हैं, एक उसका बाकायदा प्रोसीजर है। तुम अपने कारकुनों को कत्ल करने पर उकसा रहे हो। ये बात हमने पहले दिन अवाम के सामने रखी। हमने मिसाली रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। हमें पता है कि ताहिरुल कादरी की सियासत लाशों की सियासत है। आज कौम को पता है कि उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो इस मुल्क के आइन और कानून को लपेटना चाहता है। जिस निजाम की वो बात करता है, उस निजाम की शक्ल जो है वो क्या है, वो क्या इस मुल्क के साथ करना चाहता है, आज वो एजेंडा कौम के सामने आ गया। हमारे पास मुसद्दका दलाएं थी। मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कौम के सामने फैक्ट्स लेकर आया था कि ये लोग असला इकट्ठा कर रहे हैं, ये यहाँ पर दंगा फसाद करना चाहते हैं, ये यहाँ पर लाशें गिराना चाहते हैं। और दहशतगर्दी का खतरा अपनी जगह पर, ऑपरेशन जर्दे अजब जो हमारी बहादुर पाक अफवाज कर रही है, इस वक्त उससे फोकस हटाने की जो कोशिश, जो गंदी और बदबूदार कोशिश इस शख्स ने की है, जो 14 अगस्त जश्न आजादी, यौम आजादी, उससे फोकस हटाने की जो गंदी और बदबूदार कोशिश इस शख्स ने की है, आज कौम इसकी साजिश को जान चुकी है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं और आपके जरिए कौम को ये बताना चाहता हूं कि अभी जो कुछ आपने कैमरे पे देखा, जिस तरह इसके बदमाशों ने पुलिस के ऊपर आज जो गुजरी हुई रात है उसमें 3 पुलिस वालों को जख्मी किया, शदीद जख्मी किया, और इस वक्त एक SHO समेत 7 पुलिस वाले घायल होकर हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं। और उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि वो इस डंडा प्रसार फोर्स को लाहौर शहर के ऊपर तशद्दुद करने की इजाजत नहीं देना चाहते। वो असला बरदार ताहिरुल कादरी की फोर्स को लाहौर का अमनो अमान खराब करने की इजाजत नहीं देना चाहते। इन पुलिस वालों का, और अभी जो थाना इन्होंने चलाया है, वहां के पुलिस वालों का कसूर सिर्फ ये है कि वो पंजाब का अमन तबाह नहीं होने देना चाहते। आज वो मुल्क जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सऊदी अरब, टर्की, चाइना, ये लोग अब हमसे सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह का दंगा फसाद है तो क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट यहां से निकाल कर वापस ले जाएं? आज मैं समझता हूं, आज कौम ये समझती है कि इस तरह के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक होना चाहिए और कोई किसी गलत फहमी में न रहे। हमने आखिरी हद तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। हमें जो इतला थी, जो 7 जगहों से असला बरामद हुआ, वो लोग भी इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हुए हैं। जिन जिन जगहों पर इन्होंने दहशत गर्दी का मंसूबा बनाया था, वो लोग भी इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। जहां जहां पर डंडे ये किलो वाले तैयार हो रहे थे, वो लोग भी इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। और वो लोग जो अभी कानून के शिकंजे में नहीं आए, इस वक्त हम उनका पीछा कर रहे हैं। हम इन दहशत गर्दों को अदालत के कानून के कटहरे में लेकर आएंगे। और जिन लोगों ने पुलिस पर हाथ उठाया है, उनकी वीडियो फुटेज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मीडिया से भी हमें अवेलेबल है। हमने अपने तौर पे भी पहली दफा ये तमाम जगहों पर कैमरे फिट कर दिए हुए थे। ये सारी की सारी फुटेज हमारे पास मौजूद है। इसके मुताबिक हमने इनिशियल जो आइडेंटिफिकेशन की है, ये लोग जिन्होंने हमला किया, इनका लाहौर से ताल्लुक नहीं है। ये पंजाब के दूर अफ्तादा इलाकों से बुलाए हुए
पैसे देकर खरीद कर बुलाए हुए लोग थे और इनकी आइडेंटिफिकेशन होकर इनके घरों के अंदर भी इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि इनका नेटवर्क एक्सपोज हो चुका है। इनका नेटवर्क ये था और इनकी साजिश ये है कि ये इन्होंने निकलकर हमले करने थे और फिर साइमल्टेनियस कल इन्होंने पंजाब के बाकी शहरों में हमले करने थे। और वो खतरा जो हम दहशतगर्दों से महसूस करते हुए हम पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को महफूज बनाने की साजिश कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, उसको उनकी साजिश है कि इसको नाकाम बनाए। और उसके अंदर इन्होंने पंजाब के 7 शहरों को टारगेट करने का कल मंसूबा बनाया था, जो मंसूबा इस वक्त बेनकाब हो चुका है। हम इन तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका हुआ है, जिनके पास असला है, जिन्होंने पुलिस मुलाजमीन पर हमले करने थे, जिन्होंने सरकारी अफसरान पर हमले करने थे, जिन्होंने पंजाब के 7 शहरों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करनी थी। और उसके साथ साथ ये लोग जिनकी फुटेज मिली है, इनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे देकर इनको आज रात से गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जाएगा। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी, इसके ऊपर इमाम का उकसाने का जो तकरीरें आज इसने इस दोपहर को की हैं, उसके अंदर जिस तरह इसने इन लोगों को इश्तियाल दिलाया है, जिस तरह ये कौम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है, ये एजेंडा पाकिस्तान की खुशहाली का एजेंडा नहीं है। ये एजेंडा पाकिस्तान को आगे लेकर जाने का एजेंडा नहीं है। और पाकिस्तान की बर्बादी के ख्वाब देखने वाले लोग खुद बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान की गयूर और मुहिब वतन जो फौज है, पाकिस्तान की गयूर अवाम जो है, वो इस तरह के साजिशियों की साजिश को नाकाम बनाएंगे। और अब ये हुकूमत का रिजॉल्व है कि ये जितनी कार्रवाई हुई, ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ये स्टेट के खिलाफ है। ये जो कुछ हुआ, ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। हमारी इंतजामिया ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी से राब्ता किया था और इस झूठे शख्स को यह कहा था कि दुनिया के किसी भी मुहज्जम माशरे के अंदर अगर कोई एक्टिविटी करनी हो तो उसके अंदर आप इंतजामिया के साथ बैठकर बात करते हैं, आप जगह आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसके ऊपर बॉन्ड भर के देते हैं। और यही जब आज इसने इंतजामिया के साथ बैठकर कोई इस तरह का डायलॉग नहीं किया, और यही जब इसकी तरफ से पिटीशन आज हाईकोर्ट में फाइल हुई, तो हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी यही आई कि आप बैठकर इंतजामिया के साथ जो है अपने मामलात को देखें और इसके ऊपर श्योरिटी दें कि आपके लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे। जो शख्स कानून को नहीं मानता, जो शख्स आइन को नहीं मानता, जो शख्स अदालतों को नहीं मानता, जो शख्स अदारों को नहीं मानता, उसकी पाकिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है, उसकी पाकिस्तान की सियासत में कोई जगह नहीं है, उसकी पाकिस्तान के अंदर बदमाशी करने की कोई इजाजत नहीं है। और इस तरह के बदमाशों और दहशतगर्दों के खिलाफ कानून हरकत में आ चुका है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मुकद्दर अब जेल की सुलाखें हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मुकद्दर अब उन मुकदमात का सामना करना है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मुकद्दर अब उन पुलिस वालों के खिलाफ जो साजिश तैयार की गई, पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश तैयार की गई, पंजाब के 7 शहरों में जो दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की गई, इसके ऊपर बगावत का पर्चा भी होगा, दहशतगर्दी का पर्चा भी होगा। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लेकर आएंगे। मैं आखिर में अपनी बात सिर्फ इस बात पर खत्म करूंगा कि पहले दिन से हम कौम को कह रहे थे कि ये दहशतगर्द है, ये पाकिस्तान में अमन बिगाड़ने आया है, ये गैर मुल्की ताकतों का एजेंट है। इसके साथ जो खड़े लोग हैं उनको मैं ये कहूंगा कि अगर आप अभी तक मासूमियत में थे तो आज इसका असल चेहरा आपके सामने आ गया है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए आप इसको छोड़ें और पाकिस्तानियों के साथ खड़े हों। देखें, इस वक्त इसने अपने अदारे के अंदर
2500 से 2600 लोगों को बिठाया हुआ है। ये इतना बुज़दिल और डरपोक आदमी है कि अपने गिर्द इसने ख्वातीन का हसार बनाया हुआ है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है तो हिम्मत है तो निकलकर कानून का, इस मुल्क के कानून का, जिसमें ये बैठा है उस कानून का सामना करे। इस मुल्क के कानून के मुताबिक अपना दिफा। पंजाब के वजीर कानून राना मशहूद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताहिरुल कादरी और मॉडल टाउन के वाकये के मुतालिक बात कर रहे हैं। जो अहम बड़ी बात उन्होंने की है कि ताहिरुल कादरी का मुकदमा, उनका मुकद्दर जेल की सलाखें हैं। आपको बता दें कि समा ने कुछ देर पहले ही ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिवली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दी थी कि हुकूमत पंजाब ने फैसला कर लिया है कि ताहिरुल कादरी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी भी वक्त इस फैसले पे अमल हो सकता है और अब इसका इशारा दे दिया है पंजाब के वजीर कानून राना मशहूद ने भी कि ताहिरुल कादरी का मुकद्दर जेल की सलाखें हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक और उसके सरबराह ताहिरुल कादरी मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। वो अपने कारकुनों को उकसा रहे हैं। उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा पहले ही दर्ज है, ECL में नाम डालने की सिफारिश भी है। इसके अलावा उनके खिलाफ एक नई दफा भी शामिल की जा रही है कि मुल्क और रियासत के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाया है और इंतशार फैलाया है। आपको एक बार फिर से लेके चलते हैं राना मशहूद की न्यूज कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो बता रहे हैं कि ताहिरुल कादरी का मुकद्दर जेल की सलाखें हैं और ये एक्सक्लूसिव खबर समा पहले ही ब्रेक कर चुका है। नो गो एरिया तोड़ने के लिए, या फैसल टाउन और मॉडल टाउन का एरिया नो गो है, उनसे तोड़ने के लिए हुकूमत कब तक बराह रास्त से काम करेगी? ये सिर्फ इंतजार ही करेगी कि पहले उनके जो दोस्त हमारे केस बैठे वो बाहर निकल। सर ECL का भी बता देंगे वो